Hello everyone, welcome to UPSC Tale, and today we are going to start our new chapter, New Empires and the Kingdoms. Prasastis and what they tell us. Arvind was supposed to be acting as a Samudragupta, a famous ruler of dynasty known as the Guptas. We know about Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. It was composed as a kavya by Hari Senha, who was a poet and minister at the court of Samudragupta. This inscription is a special kind of known as Prasasti, a Sanskrit word meaning in praise of. While Prasastis were composed for some of the ruler you read in previous chapter, such as Gautamiputra Shri Satakarni, they became far more important from the time of the Guptas. अरविंद को समुद्रगुप्ता जो कि बहुत फेमस रूलर थे गुप्ता वंश के, उनकी एक्टिंग करनी थी। इनके बारे में हम लोग अशोकन पिलर जो कि इलाहाबाद में है उनसे जानते हैं, जिसको कंपोज काव्य हरि सेना ने किया था। इन सारे इंस्क्रिप्शन को हम लोग एज अ प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रशंसा, मीन्स तारीफ। हमने पिछले चैप्टर में गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी जो कि गुप्ता के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उनके बारे में भी पढ़ा है। समुद्रगुप्ता's प्रशस्ति. Let us see what Samudragupta Prasasti tell us. The poet praised the king in glowing terms. As a warrior, as a king who won victories in battle, who was learned and the best of the poets, he is also described as equal to the god. The Prasasti was composed in very long sentences. Here is a part of one such sentence. Samudragupta the warrior, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the mark of hundred of scars caused by battles, axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, sword, iron clubs, javelin, barbed arrows, long arrows and many other weapons. समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति से हमें ये जानने को मिलता है कि जो भी वॉरियर जो थे वो अगर किसी भी बैटल को जीतते थे तो उन्हें एज अ गॉड मीन्स इक्वल टू गॉड बताया जाता था, और जो भी प्रशस्ति थी वो बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंसेस में कंपोज की जाती थी। Here is 2 points which shows the other qualities of king. Like Samudragupta, here Samudragupta is playing veena. If we look map 7, we will notice that the area shaded in green, and we will also find a series of red dots along the east coast, and we will find area marked in purple and blue as well as. This map is based on the information provided in the Prasasti. Hari Sena described 4 different kinds of ruler and tell us about Samudragupta policies towards them. And ये जितनी भी map based information है ये हमें प्रशस्ति में मिली, जो कि हरि सेना उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। द फर्स्ट वन इज द रूलर ऑफ आर्यभट्टा. द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप. Here were the 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. Here is the word uprooted. Uprooted means होता है उखाड़ फेंकना। यहाँ जो 9 किंग थे मीन्स जो रूलर थे उस टाइम के, उसको समुद्रगुप्ता ने उनको वहाँ से हरा दिया था, और ये जो किंगडम था वो समुद्रगुप्ता का हो गया था। The second one is the ruler of Dakshinpatta. Here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. This surrendered to Samudragupta after being defeated and then he allowed them to rule. Means इन लोगों ने समुद्रगुप्ता के सामने मीन्स वो लोग हार मान गए थे, देन समुद्रगुप्ता ने उनको रूल करने की परमिशन मीन्स अलॉटमेंट दे दी थी उन लोगों को। द थर्ड वन इज द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, a number of Gana, Sangana. In north, west marked in purple on the map, they brought tribute, followed his order and attend his court. मीन्स वो लोग उनको ट्रिब्यूट दिया करते थे, उनके ऑर्डर्स फॉलो करते थे, एंड उनकी जो कोर्ट जो भी असेंबलीज हुआ करती थी उसको अटेंड भी किया करते थे। द फोर्थ वन इज़ द रूलर ऑफ आउटलाइनिंग एरिया मार्क्ड इन ब्लू on the map, perhaps the descendants of the Kushanas and Shakas.
and the ruler of Sri Lanka who were submitted to him and offered daughter और इन मैरिज मीन्स उन लोगों ने खुद को इस तरीके से सबमिट किया, मीन्स उन लोगों ने अपनी बेटियों की मीन्स डॉटर की उनसे मैरिज करवा दी, मीन्स शादी करवा दी। ये सारी चीज़ें हम लोगों को हरि सिन्हा जो कि उस टाइम में जो पोएट थे उनके ज़रिए पता चली, और इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रशस्ति से पता चलती है। Here is the map, but it is not colorful. That's why you can't see the green, blue and the red dots and the purple dots and purple area or red area. But you can understand it by the name because here names are mentioned. Now the next topic is genealogies. Most Prasasti also mention the ancestor of the ruler. This one mentions Samudragupta's great-grandfather, father and mother. His mother, Kumra Devi, belonged to Lichavi Gana, while his father Chandragupta was first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title Maharaja Adhiraj, a title that Samudragupta also used. His great-grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. It seems as the family gradually rose to importance. There is a things come that after Samudragupta, his son Samudragupta too, we know about him from the inscription and coins. मीन्स जितने सारे इंस्क्रिप्शन थे और coins थे उनसे हम लोगों को पता चलता है, और ये माना जाने लगा था शाकास को हराने के बाद कि उनके दरबार में जितने सारे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग पाए जाते थे, लाइक कालिदास द पोएट एंड द एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हर्षवर्धना एंड द हर्षचारिता। हम लोगों को गुप्ता रूलर के बारे में सारे इंस्क्रिप्शन की वजह से पता चला, जितने सारे कॉइन्स जो थे उसकी वजह से, एंड जो बायोग्राफीज थी किंग्स की उनकी वजह से। हर्षवर्धना जिन्होंने नियरली 1400 ईयर्स अगो उन्होंने अपना राज किया था, एंड द भानभट्टा वॉज द पोएट ऑफ हिज कोर्ट, ही रोट हिज बायोग्राफी the Harshcharita in Sanskriti. This gives us the genealogy of Harsha, and we have already read about the Xuanzang means in previous chapter. He also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account what he saw. मीन्स उन्होंने जो भी देखा उन सबको डिस्क्राइब किया अच्छे से, उन्होंने अपनी जो किताब लिखी या लोगों को बताया वो सारी चीज़ें। हर्षा जो थे वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो राजा बने बिकॉज उनके फादर की डेथ हो गई थी और उनके जो बड़े भाई थे उनकी भी डेथ हो गई थी। His brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal. मीन्स जो कनौज उसके ब्रदर इन लॉ थे वो भी बंगाल के रूलर के द्वारा वो मारे गए थे। देन आफ्टर डैट हर्षा टुक ओवर डैट किंगडम ऑफ कनौज एंड then led an army against the ruler of Bengal. Although he was successful in east, conquered both Magad and Bengal, he was not as successful as where he tried to cross the Narmada to march into the Dakkan, but he was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, Pulkesin II. After the death of his brother-in-law, उन्होंने कनौज को अपने अंडर कर लिया, बंगाल को हराया। देन वो ईस्ट में भी सक्सेसफुल हो गए, मगध और बंगाल उनके कंट्रोल में आ गया, और वो और इसको ना क्रॉस मीन्स नर्मदा को भी क्रॉस करना चाहते थे और दक्कन की तरफ जाना चाहते थे, मीन्स उसको भी अपने अंदर लाना चाहते थे, मीन्स उस पर भी कब्जा जमाना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए। उनको चालुक्य डायनेस्टी जो पुलकेशिन II है उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया, मीन्स उन्होंने रोक दिया। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पल्लवास, चालुक्याज एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। चालुक्याज एंड पल्लवास ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी उस टाइम की, मीन्स साउथ इंडिया की, और जो किंगडम था पल्लवास का वो पूरे रीजन में फैल रहा था। कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, while the Chalukyas was the center around the Raichur Doab between the river Krishna and Tungabhadra. A whole जो कि कैपिटल था चालुक्य का was important trading center also. It developed as the religious center with a number of temples. The Pallavas and the Chalukya frequently raided one another land, especially attacking the capital city, which were prosperous towns. The best known Chalukya ruler was Pulkesin II. We know about him from
Prasasti composed by his court poet Ravi Kriti. This tells us about his ancestors who were traced back through four generations from father to son. Pulkeshin eventually got the kingdom from his uncle. According to Ravi Kriti, he led expedition along both the west and the east coast. Besides, he checked the advance of Harsha. There is an interesting play of word in the poem. Harsha means happiness. The poet say that after his defeat, Harsha was no longer Harsha because पुलकेशिन इनने तो अटैक कर दिया था, मीन्स उनको आगे आने से रोक दिया था, और पुलकेशिन ने पल्लवा किंग पे भी अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उनको कांचीपुरम वॉल के बिहाइंड में उसके पीछे शरण लेनी पड़ी थी। चालुक्य की विक्ट्री जो थी बहुत ही शॉर्ट टाइम की विक्ट्री हो रह गई थी। न्यू रूलर थे राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी मीन्स चोला वंशज, इन लोगों ने उनको हरा दिया था बिकॉज वो दोनों पल्लवज और चालुक्य दोनों ही कमज़ोर ही हो गए थे, बिकॉज लड़ाई में तो दोनों तरफ का नुकसान होता था, इस वजह से वो लोग हार गए, जिसके बारे में हम लोग स्टैंडर्ड 7 में कंटिन्यू करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वेयर दीज किंगडम्स administrated. As the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers and the villages remained the basic unit of administration. There were some new development as well as king adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially or because of their political and military strength for intense. तो बस किंग्स के लिए बस लैंड्स इम्पोर्टेंट थी, जिसकी वजह से वो को बस कब्जा करते थे, बट धीरे धीरे उन लोगों ने उन लोगों पे से कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया जो कि इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। कुछ इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी वो हेरिडिटरी हो गए। इट मीन्स कि जो अगर फादर की है वो उसके बाद उनके बेटे को जाएगी। फॉर एग्जांपल पोएट हरिसेना was a महादंडनायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर, उनके फादर भी वही थे। और एक और चीज़ यहाँ पे ये आती है कि महादंडनायक होने के बावजूद वो कुमारामत्य थे, जो कि इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी थे, संधि विग्राहिका भी थे, जो कि मीनिंग होता है कि वॉर एंड पीस में वो इसके रिगार्डिंग भी काम करते थे। एंड इम्पॉर्टेंट मेन जो थे उनको कहा जाता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो लोग बैंकर हुआ करते थे, मर्चेंट हुआ करते थे, शहर के लीडर्स जो थे वो लोग रहा करते थे। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, जो पहले के रूलर थे वो चीज़ मेंटेन करते थे आर्मी, जैसे एलिफेंट्स होते थे, घोड़े होते थे, घुड़सवार होते थे, कुछ सोल्जर्स होते थे जो कि बाई फुट लड़ा करते थे। लोगों को एक एग्जैक्ट सैलरी नहीं मिला करती थी, उनके बदले उन लोगों को ज़मीनें दे दी जाती थी और वो ज़मीन से ना कर वसूल करते थे या और उससे अपना हॉर्सेस का या एलिफेंट्स को जो भी खर्च आते थे उसका उठाया करते थे। एंड जब भी व्हेनेवर द रूलर वाज वीक सम मंथास ट्राइड टू बिकेम इंडिपेंडेंट, मीन्स ये लोग इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे। था उन लोगों को कहा जाता था जो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लैंड से एंड जो हॉर्सेज एंड सोल्जर्स उनकी मेंटेनेंस के लिए। असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। दीज इंक्लूडेड द Sabha, which was an assembly of Brahmin and owner. This assembly functioned through the subcommittees which looked after the irrigation, agriculture, operation, making road, local temples, etc. It was a village assembly found in area where the landowners were not Brahmin and the Nagaram was an organization of merchant. It is likely these assemblies were controlled by the rich, powerful landlord and the merchants. Many of these local assembly continued द फंक्शन फॉर सेंचुरीज। ये सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन में हम लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ लोकसभा होती थी जहाँ के ब्राह्मण ओनर हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें रोड बनाना, लोकल टेम्पल्स मीन्स मंदिर, एग्रीकल्चर, सड़क निर्माण, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते थे। उर जो विलेज की असेंबली थी उर नामक, वहाँ के जो लैंड ओनर्स जो ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंट्स चलाते थे और उनकी असेंबली को भी वही कंट्रोल करते थे। वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल लॉर्ड या फिर रिच एंड पावरफुल मर्चेंट उसको कंटिन्यू करते थे। कुछ असेंबली तो काफ़ी सेंचुरी तक चली थी। Ordinary people in the kingdom, we can catch occasionally glimpse of lives of ordinary people from the plays and another account. Let us look at some of these.
कालिदास जो थे वो प्लेस की ही वजह से जाने जाते थे, जो कि किंग के कोर्ट में रहा करते थे। उनके जो नाटक, जो ड्रामे होते थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। उन्होंने दिखाया कि जितने सारे किंग्स एंड ब्राह्मण थे वो लोग संस्कृत बोलते थे, और जितने नॉर्मल लोग थे वो लोग बस प्राकृतिक जो लैंग्वेज थी वहाँ की वो बोला करते थे, मीन्स उस लैंग्वेज में बोला करते थे। बीजनाना शकुंतलम इज़ द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन किंग नेम दुष्यंता एंड a young woman named Shakuntala. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. This is the story of a fisherman finds a ring. Means fisherman को एक बहुत ही प्रीसियस रिंग मिली जो कि किंग ने शकुंतला को दी थी, और एक्सीडेंटली वो रिंग को एक मछली इसको निगल गई थी। बट जब मछुआरे ने उसको रिटर्न करने के लिए आया, मछुआरा उस रिंग को, तो वहाँ पे जो गेट कीपर था उसने बहुत बदतमीज़ी से उससे बात की और उसी पे उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया। बट फाइनली किंग को ये रिंग देख करके बहुत खुशी हुई और उसने मछुआरे को इनाम दिया। बट जितने जो पुलिस ऑफिसर थे और गेटमैन, उसने मछुआरे से पैसे लेने के लिए उसके साथ ड्रिंक मीन्स शराब खाने वो लोग चले गए उसके साथ। जो चाइनीज़ तीर्थ यात्री थे फाशिन, उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे ना अनटचेबल मीन्स छुआछूत को माना जाता था। जो लोग ऊंचे हाई सोसाइटी के थे वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा देते थे, एंड जो लोग लोअर कास्ट के थे उन लोगों को सिटी में रहने भी नहीं दिया जाता था, बाहर रहना पड़ता था। और जब उनको मार्केट आना होता था तो वो एक लकड़ी के टुकड़े को ठोका करते थे, मीन्स पटका करते थे, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि वो लोग आ रहे हैं और वो लोग खुद ही सतर्क हो जाए, मीन्स कोई किसी से टच ना हो। ना द किंग्स आर्मी, किंग जो थे अपने साथ सिर्फ इक्विपमेंट्स मीन्स लड़ाई के ही नहीं ले जाते थे, वो जो डेली यूज़ का सामान होता था, पॉट, पैंस, फर्नीचर, गोल्ड, फूड टूल, फूड इंक्लूडिंग एनिमल, गॉड, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें कार्ट्स पे ये लोग कैरी करके जाते थे और वो लोड करते थे लाइक एनिमल पे, लोग कार्ट पे या फिर एलिफेंट्स पे। एंड उनके सामने ना लोग हॉर्न, जो भी काम करने वाले होते थे वो हॉर्न बजाते रहते थे, और जिसकी वजह से ताकि राजा को ना अप्रिसिएशन, लोग माला वगैरह दे, गिफ्ट दे, और वो लोग गिफ्ट में ना कर्ड, फ्लावर, गुड़ वगैरह चढ़ाया करते थे। लेकिन किंग का ये था कि वो तो रिपुटेशन बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करते थे, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बर्बादी हो जाती थी, बिकॉज इतने सारे जो साथ में जो एनिमल्स आते थे, एलिफेंट्स आती थी, इनकी वजह से जितने सारे काव, ऑक्सन मीन्स भैंस, बैल, ये सारी चीज़ थे, वो सारे एनिमल्स डर से वहाँ से भाग जाते थे, और जितने सारे एलिफेंट्स थे वो आसपास का एरिया पूरा बर्बाद कर देते थे और हर जगह धूल धूल हो जाती थी। एज भानुबत्ता सेज द होल वर्ल्ड वॉज सॉलोड अप इन डस्ट, सारे वर्ल्ड को मीन्स उस टाइम में ना धूल ने जैसे निगल लिया हो। Here is the two important dates: beginning of the Gupta dynasty about 1700 years ago and the rule of Harshvardhana about 1400 years ago. These are the two important dates which is mentioned in this book, and you have to remember this. It is a topic about Arab. Although it is a desert, it was the hub communication for centuries. In fact, the Arab merchant and sailor played important role in the sea trade between India and Europe. मीन्स अरब जो कि इलाका सिर्फ डेज़र्ट का था, मीन्स रेगिस्तानी इलाका था, ये लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल मीन्स मर्चेंट में दिखाया। यहाँ पे मेनली कैमल्स और ऐसे एनिमल्स का यूज़ किया जाता था इधर से उधर सामान करने के लिए, जो कि डेज़र्ट में सरवाइव कर सके। अराउंड 14 years ago, Prophet Muhammad introduced a new religion, Islam, in Arabia. Like Christianity, Islam was a religion that laid stress on equality and unity of all before Allah, that one supreme God. Here is a verse from Quran. It is the book of Islam for Muslim men and women, for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in Allah as remembrance,
for them has Allah prepared forgiveness and great reward. Within 100 years, Islam spread to North Africa, Spain, Iran, and India. Arab sailors who already familiar with the coastal settlement of the subcontinent now brought the new religion with them. Arab soldier conquered Sindh in present-day Pakistan about 1300 years ago. 1300 years ago, Prophet Muhammad ने न्यू रिलीजन इस्लाम का इंट्रोडक्शन सबसे करवाया, जैसे क्रिश्चियनिटी का था। इसको भी सबने इक्वल माना। इनका भी मानना था कि अल्लाह सिर्फ एक अल्लाह है। कुरान जो होली बुक है इस्लाम की। मुस्लिम औरत और मर्द जो कि अल्लाह में विश्वास रखते हैं, मीन्स उनके लिए जो सच्चे हैं, जो लोग अब पेशेंस रखते हैं, दूसरों के साथ हम्बल होते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो कि चैरिटी देते हैं, मीन्स दान देते हैं, जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ने माफ़ी रखी हुई है। मीन्स उन लोगों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ही रिवॉर्ड देंगे, ग्रेट रिवॉर्ड देंगे। विदिन 100 years इस्लाम नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान, अरब एंड इंडिया सब में फैल चुका था। ये बाद सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स ने सिंध पे कब्ज़ा जमा लिया था 1300 years ago के अराउंड। This was the whole explanation of new empires and kingdom. Hope this video is helpful for you, and if it is helpful then you can like this video and share with your friends, and thanks for watching everyone.